शिव, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यार। आज मैं तुम्हें डीएनए की वो मिस्ट्री बताऊंगा जो कि तुम्हें याद रहेगी। तुम्हें एंजॉय आएगा पढ़ने में बायोलॉजी। और ऐसा हो सकता है कि मेरी क्लास का इफेक्ट ये पड़े कि कुछ लोग फिर 11th बायोलॉजी ले लें। ऐसा हो सकता है। और नाउ वी विल स्टार्ट विद अ डाउट। Okay, let me just first start the class. Sir, I also have a doubt. Okay, I'll take it. Class 8 and science is what we are doing. Chapter is 8, cell. Okay. आज काफी अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको डीएनए आरएनए क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। हाँ जी, पहले डाउट या अर्नव डाउट। So I didn't understood this statement. Cube root of a number is डिडंट same. अंडरस्टूड नहीं होता, डिडंट अंडरस्टूड नहीं होता, डिडंट अंडरस्टैंड होता। Yes, sir. So the cube root of a number is same as raising the number to the power 1 upon 3. क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज सेम एज रेजिंग द Number to the power 1 upon 3. अच्छा अच्छा, हाँ वो तो ठीक है। पावर रेजिंग द सेकंड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर Sir, इज सेम एज। sir, raising the power of the number to 1 upon 3. ओके ओके, प्रभुगुण गुड इवनिंग। राइट गाइस, बड़ा अच्छा डाउट है ये। डाउट है मैथ्स का, क्यूब रूट का डाउट है। अर्नव सेज कि सर ये कैसे स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज सेम एज दिस। ओके, ये बेसिकली ऑलराइट, सी आई हैव एक्स हियर। ये पहली बात तो कन्वेंशन है, दिस इज कन्वेंशन। क्यूब रूट एक्स इज रिटन लाइक दिस, स्क्वायर रूट एक्स इज रिटन एज एक्स अपॉन 2। ठीक, ओके, नाउ लेट अस सी। I have a x here and let us say I multiply this with this. नीचे भी कर देता हूं। Okay, so this will become x root to the power I'm trying to give a proof for this, but it seems the proof is not there. It is a convention. It is a convention that what we do is whenever the power is like this, we Evening, write sir. it as 1 upon. Abhinav, good evening. We write it as this. अभी ऐसे you can take it. अब अपना अर्नव, ये कन्वेंशन है कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं सेम नंबर इज रिटर्न लाइक दिस। सपोज करो आई हैव ए नंबर लाइक दिस एक्स स्क्वायर एंड इट इज क्यूब रूट 3, सो आई विल राइट इट एज x raised 2 upon 3. So whatever power is here comes in numerator, whatever is here is comes in denominator. Okay, take it as like this. There is no proof for this. It's a convention. You know what is convention? Rule. You can take it as a rule. Okay, sir. Yeah, second doubt. Sir, I. Yeah, जी हाँ बोलो। ऋतिक also. Sir, Okay, why ऋतिक does पहले एक मिनट, जी हाँ एक मिनट, ऋतिक ने पहले बोला था। Yeah, ऋतिक। Yes, sir. So does density affect the mass of is density is gravity? So does gravity affect everything the same? Say something has the weight, and there is another object of twice the weight of the first object. क्वेश्चन क्लियर नहीं है, दोबारा बोल। तो ग्रेविटी हर चीज को सेम अफेक्ट करती है क्या? यानी एकदम Yeah, okay. So there is a guy called Galileo. Galileo इटली के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। लोगों को उन्होंने दिखाया, इटली के अंदर एक देयर इज अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। He climbed on the leaning tower of Pisa. He had one weight of 1 kg and he had a one weight of 100 kg. He dropped them together. People said no, 10 kg, 100 kg will reach the ground faster, but it did not prove to be right. Both the weights reached the ground at the same time. I think is that your question?
Yes, sir. And so does density of an object affect it? हाँ, because density is related ना, density is mass upon volume. Okay, sir. तो ये रिलेटेड आपस में, डेंसिटी और मास रिलेटेड है. तो या Sir, why does magnesium ribbon starts floating on hot water? ओके, तो ये सर मेरा ये डाउट सिया का नहीं है, डाउट नहीं है, जिया का है। जीनल का है. जिया का जीनल का. ओके, इफ आई पुट इट, आई थिंक पहली बात तो हाइड्रोजन निकलेगी. मैग्नीशियम प्लस H2O will give you NgOH plus H2. I think it may be because of hydrogen. मैं चेक करूंगा बेटा, मेरे को ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा. I'll Okay, just check sir. it and tell you. Right now I can't tell you. ठीक है. Why does a magnesium? Magnesium is a highly reactive metal. It reacts with the hydrogen with water very briskly. So I'll just check why it flows. Okay, Okay. sir. Guys, any other doubt before you go ahead? चलो, let's Sir, आज या क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पता नहीं, कुछ अजीब सा नाम कुछ लोग बोलते हैं. मैंने कई लोग सुना हुआ है, गेंद, बॉल, बैट, कोई बॉल नहीं, बॉल नहीं, ऐसे कुछ कर. बहुत लंबा नाम है सर वो. तुम्हें आता है तो तुम बताओ, पर इम्प्रेस पीपल. आता है? तो गिली डंडा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ पता है, अजीब सा बोलते हैं, गेंद, क्रीड़ा, मंदनी, खंदनी, ऐसा कुछ कर वर्ड है. Sir, Okay. I have one more doubt. तो आगे पढ़ने नहीं देगा, जल्दी बोल. Sir, how does sun produce fire without oxygen? Okay, you don't have to produce, you don't need oxygen. There is no combustion going on there. वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है. न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम मिलता है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम मिलता है. वहां इतनी हीट है कि वो एकदम जब ज्वाइन करते हैं तो फ्यूजन होता है. इन दैट फ्यूजन हीलियम बनता है, हीलियम. और हीलियम का जो मास है वो दो हाइड्रोजन के मास से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा. तो आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दिया है, इट्स कॉल्ड E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू, लेट्स से 1 ग्राम मास कम हुआ, 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम की बात कर रहा हूं. एक्चुअली तो 1 kg है, तो आई विल से 10 टू द पावर -3 kg. लेकिन C की वैल्यू बहुत ज्यादा है. यू नो व्हाट इज C? C इज द स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज 3 into 10 to the power 6 meter per second. नहीं, 3 into जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती ना, तो 5 जीरो वो होगी, 3 into 8, 3 into 10 to the power 8 meter per second into 3 into 8. So when you multiply this, you will get 9 into 10 to the power 13 जूल. अब समझ में आया कि एटम बॉम्ब इतना डेंजरस क्यों होता है. इतना सा एटम Yes, बॉम्ब होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, 1 ग्राम से मैंने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है. वो होगा 10 kg का, 20 kg का, तो देखो कितनी एनर्जी निकलेगी. तो सन के अंदर जो एनर्जी है वो कंबशन से नहीं निकलती दोस्त, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है. एंड दैट इज व्हाई आवर सन हैज ए लाइफ ऑफ 10 मिलियन ईयर्स. उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, एंड इट विल बिकम ए स्टार, इट विल बिकम ए व्हाइट ड्वार्फ. चलो आगे चलो. Right, guys, we were at nucleus yesterday. I'll just explain to you the construction of DNA and gene, and then I'll take you to other parts, other organelles. ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी क्लास का नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर मेरी कमेंट्री आ जाएगी. उससे जब भी तुम बात डीएनए पढ़ोगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी. You don't have to memorize these details. You just understand the basic concept. Now, the basic dogma बोलते हैं rule. The basic dogma of science is, central dogma बोलते हैं इसको. Central dogma is, dogma मतलब rule. Central dogma is, DNA creates RNA. RNA with the help of ribosome creates protein. And this is what the stuff human body is made up of, or all bodies for that matter. Now,
Let us see what is DNA. Yesterday I told you DNA is a double helix structure. ऐसा स्ट्रक्चर है पूरा, ऐसे करके स्ट्रक्चर है. Now I am now making it like this, guys. Now just imagine this is not one unit. There are two units. So it is a pair of single. It's a pair of mono nucleotides. It's a pair of mononucleotides. तो एक पेयर ऐसा है, एक साइड ऐसी है और एक साइड ऐसी है. डीएनए की जो साइड है, ये जो साइड वाली दो बाजू हैं, इनको बोलते हैं बैकबोन. दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए. जैसे हमारी बैकबोन के बीच में स्पाइन होती है, ऐसी इसको बैकबोन बोलते हैं. अब हम देखते हैं एक डीएनए का जो यूनिट है वो किस चीज से बना होता है. तो दोस्तों डीएनए की एक यूनिट के अंदर इट हैज गॉट वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जिसको हम P से दिखाते हैं. इट हैज अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर. नाउ शुगर के सारे नाम ना एस होते हैं. ग्लूकोज जैसे ओज होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज, सारी की सारी शुगर को ओज बोलते हैं. ये जो शुगर होती है इसको बोलते हैं राइबोज. एंड दिस शुगर इज, ऑल शुगर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. दिस शुगर इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके ऋत्विक, कितना लेट कैसे हो जाते हो दादा? हाँ ऋत्विक चंदेल भाई, टाइम से आया करो क्लास में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा. ओके यस. हाँ ओके राइट गाइस, जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो. ये चीजें तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है अगली क्लासेस में. ये स्टोरी तुम्हें याद ही नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ, डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट दिस वीडियो शुड बी देयर विद यू. जब भी कभी डाउट पड़े वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर. ओके मुझे कुछ लोगों की आवाज नहीं आई अब तक. प्रभुगुण, युवराज, ऋत्विक चंदेल, गाइस कैन यू हियर मी? यस सर. Yes, sir. ओके ओके युवराज की भी आ गई. प्रभुगुण, Yes, sir. ओके राइट. नाउ दोस्तों देखो, हर एक डीएनए 3 चीजों से बन के बना है. मैं भी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा. एक होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक होता है शुगर. इट इज 5, इसको बोलते हैं राइबोज. एंड दिस इज 5 कार्बन, 5 कार्बन इसके एटम्स होते हैं. 5 कार्बन शुगर बोलते हैं इसको. और तीसरा होता है एक नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन. ये 3 चीजों से बनकर बनता है. स्ट्रक्चर दिखाता हूं कैसा. ये जो 5 अब जब तुम 9th 10th में पढ़ोगे, 9th 10th में पढ़ोगे, तो जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है. देखो उनको ऐसे बनाया जाता है. तो इसमें 5 कार्बन है. देखो दिस इज वन कार्बन, इसको बोलते हैं 1 प्राइम, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहां इसका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है. तुम बोलोगे सर 5 कार्बन कहाँ है? एक 5th कार्बन इधर होता है. 5 कार्बन. अब स्ट्रक्चर देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा. इसके यहां पे बनेगा एक फास्फोरस P मॉलिक्यूल, चिपक जाएगा इससे. तो फॉस्फेट मैंने तुम्हें दिखा दिया, यहां है. शुगर ये रही. अब तुम बोलोगे सर इसका क्या है, ये नाइट्रोजन बेस्ड प्रोटीन जो है. भाई ये नाइट्रोजन बेस्ड जो प्रोटीन है, इनको न्यूक्लियो बेस बोलते हैं.
This is called a base. It's called nucleobase. Nucleo नाइट्रोजन से बनता है और सारी कोडिंग इन्हीं की वजह से होती है। ये 4 तरह के होते हैं, देखो A, C, G and T। इसका नाम है एडेनाइन। ये वर्ड तुमने कहीं सुना होगा पहले, एडेनाइन, एडोनाइन, एडनोसाइन, इस तरह का वर्ड सुना होगा कहीं, एडनोसाइन, एडेनाइन। ओके, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में पढ़ा सुना होगा, ATP, ADP, बट दिस इज एडेनाइन। उसके बाद आता है सिस्टोसाइन, ये प्रोटीन के स्टैंड्स हैं पूरे। देन कम्स गुआइन एंड देन कम्स थाइमाइन। आप लोग इसको सिर्फ ऐसे याद रखोगे, A, C, G and T। तो यहां पे क्या होगा, एक इसके साथ इनमें से एक कोई ना कोई कंपाउंड यहां जुड़ा होगा, ये वाला इनमें से A, लेट्स से A जुड़ा हुआ है, कहीं C जुड़ा हो, कहीं G होगा। तो जब ऐसे मिलते हैं ये, अच्छा ये वन साइड हो गई, दिस इज हाफ। नाउ लेट मी मेक द अदर हाफ। तो ये अदर हाफ इज उल्टा। अब थोड़ा सा तो 2 मिनट दे दो बस, मेरे को सब समझ में आएगा। ये दूसरी साइड का जो चेन है ना, वो उल्टी बनी है। इसका अगर टिप ऊपर होगा, इसका नीचे होता है। दिस इज 1C, 2C, 3C, 4C एंड 5C। राइट, यहां पे एक फॉस्फेट चिपक गया, और यहां तीनों में से ACGT में से कुछ भी चिपक जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे दोस्तों, ये वाला और ये वाला, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। मैं यहां बना रहा हूं, ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। शुगर, फॉस्फेट, A, दूसरी तरफ G, P। उल्टा चलेगा। अब इसमें जो नेक्स्ट फॉस्फेट आएगा वो नंबर 3 पे आएगा। इसको बोलते हैं 5 प्राइम, इसको बोलते हैं 3 प्राइम। ये यहां 3 प्राइम। अब एक और जुड़ जाएगा, देखना, अब देखना, ये एक P अब यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ेगा जी। और ये P जब जुड़ेगा तो नीचे वाले के ऐसे जुड़ जाएगा, और फिर यहां एक और आ जाएगा, लेट्स से C आ गया। और सिमिलरली इधर क्या होगा, ये 5 पे जुड़ा हुआ था, अभी ये 5 पे जुड़ा था, अगले वाले के ये 3 पे जुड़ जाएगा, ऐसे यहां जुड़ जाएगा। यस, फिर यहां एक P जुड़ेगा, फिर ये ऐसे चलते हैं, और लेट्स से यहां T आ गया। अब ये जो छोटा सा पार्ट, ये बड़ा सा पार्ट तुम्हें दिख रहा है मैग्नीफाई होके, ये एक्चुअली ये है, ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। लेट्स से दिस इज A, दिस इज G, दिस इज C एंड T। दिस इज द कोडिंग। ये जीन है, ये कोड जो है ना इसका, एक पर्टिकुलर पार्ट। ये सर ये सारी चीजें सेल के अंदर हो रही है? सेल नहीं, ये डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए जो कि क्रोमेटिन का नूडल बना हुआ था अब तक, जब सेल डिवीजन होगी तो ये डीएनए इस तरह से हो जाएगा। ये एक्चुअली डीएनए ऐसे नहीं होगा, डीएनए रहेगा तो ऐसे ही। तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया। और जब डीएनए को आरएनए बनाता है तो डीएनए अपने 2 पार्टों को अलग कर देता है, उसमें एक पार्ट निकाल के ऐसे पांच उसके अंदर वो जाएंगे, उसको बोलेगा हाँ भाई तू अब आरएनए है, अब तू जा। और जैसे मैंने तेरे को ACTG जो भी दिया है, A दिया है, दोबारा से फिर C दिया है, इसके हिसाब से जाके तू डोग्मा के हिसाब से प्रोटीन बना, और सेल के अंदर ये सब कार्रवाई करता है। इतना सफिशिएंट है डीएनए आपके लिए, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डीएनए एंड हाउ इट इज मेड। लेट अस गो नाउ अहेड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने सेंट्रल के बाद का लिखा है। डोग्मा का मतलब होता है रूल। सेंट्रल डोग्मा मतलब सेंट्रल रूल।
सेंट्रल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डीएनए विल मेक आरएनए, आरएनए विल मेक प्रोटीन। राइट, आई एम शेयरिंग द नोट्स नाउ। अभी थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बहुत गहरे लेवल पे मैं लेके गया तुम्हें, उसका फायदा मिलेगा, अब तुम्हें बाकी चीज आसान लगेगी। Science. This is chapter 8, 8. Okay, यार कल की क्लास में anybody who has not read this confirm to me, I want to give you a chance. या बताओ जिसने नहीं पढ़ा। हाँ ऋत्विक डाउट पूछ, ऋत्विक अच्छा पहले पूछा था, ठीक, राइट, जल्दी करते हैं। Okay, so we'll start from the beginning then. Right, Sia, you will be the first one to read. Okay, sir. ओके दोस्तों, यहाँ तक आ गए, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, वैरायटी इनसाइड देख लिया, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया, ये देख लिया, जीन पढ़ लिया था कल। अच्छा मैंने ये पेज तुम्हें दोबारा पढ़ाया था, वो पेज अलग से है मेरे पास, सब हमने पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ चलते। ओके, फंक्शन। तो जीन की अभी हम बात कर रहे हैं जीन्स की। जीन क्या कैरी कर रहे हैं? हेरिटेज लेके जा रहे हैं, हेरिडिटी क्वालिटी जा रहे हैं। बच्चे की बालों का कलर क्या होगा, बच्चे के बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, आंखों का कलर क्या होगा, इतनी हाइट होगी, all these is covered in DNA. By the way, 98% of our DNA do not have any code. It is only 2% of the DNA. Only सर आपकी स्क्रीन पे सर। only 2% DNA has coding. बाकी के DNA में कोडिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोडिंग हो और हमें ना पता हो। बहुत टाइम से ये जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, ये वेस्ट में अमेरिका यूएसए में चल रहा बहुत टाइम से। ऐसा हो सकता है कि हमें ना पता चला हो, लेकिन एज ऑफ नाउ साइंटिस्ट आर बिलीविंग इट्स ओनली द 98% doesn't have a code, only 2% has the code. So yeah, now start करते जल्दी। Yeah, go ahead. Yes, sir. Functions. Yes, sir. Functions. It is concerned with the transmission of hereditary traits from parent to offspring, that is inheritance. It controls all the metabolic activities of the cell, that is control center of cell activities. Note: the nucleus and the cytoplasm together make up the protoplasm, which is called the living substance of the cell. The main constituent elements of protoplasm are carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, but it also contains other elements. This term was coined by J.E. Purkinje Purkinje. in 1839। 9। लिखा हुआ 1839 नहीं, लिखा नहीं, पर 1839। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, सेल के अंदर सब कुछ, सेल वॉल को छोड़ के, सेल Sir, मेम्ब्रेन, screen share हो स्क्रीन cytoplasm and nucleus, all these things together are called protoplasm। एंड किसने दिया था? पुरकिंजे जी ने कॉइन दी थी। ओके, हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, कोबाल्ट, कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, बहुत सारी, बट मेन कंपोनेंट हमारी बॉडी क्या देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट भी बहुत जरूरी है, आयरन भी जरूरी है वैसे तो, बट मैक्सिमम जो यूसेज है इन तीन चीजों का ज्यादा है। ये तीन चीज सबसे ज्यादा लगती है, तो इसीलिए तुमने देखा होगा हमारे एयर में, अर्थ में, नेचर में ये तीन चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है, चार चीजें, 4 as compared to other elements. Okay, right. Let me just give a Excuse me, chance sir. to the new students. एक मिनट। हाँ बोल रहा जल्दी। So what are metabolic activities? Okay, मैं समझा रहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। सो metabolic activity, very easy to understand. I'll just explain in the simplest terms. It is consists of two activities. One is catabolic,
एंड दूसरा है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों? ब्रेक कॉम्प्लेक्स substances into simple ones। अभी पहला, चाहे इंडिया के अंदर कोई बच्चा जलंधर में बैठ के पराठे खा रहा है, या यूएसए के अंदर कोई बर्गर खा रहा है, तो पराठा खाए चाहे बर्गर खाए, वो जो खा रहा है दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लिसराइड। पॉलीग्लिसराइड यानी कार्ब खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट। फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स में, और फाइनली इट विल टर्न इनटू ग्लूकोज which will give energy to your body। Similarly, whether you are eating chicken, mutton, egg or dal, whatever protein you eat, it will convert into amino acids। अमेरिका में खा रहा हूँ, यूरोप में खा रहा हूँ, उधर कोई हैमबर्गर खा रहा है, इधर इंडिया में कोई चिकन बर्गर खा रहा है, इधर कोई बंदा अंडा खा रहा है, सबका प्रोटीन टूट जाएगा अमीनो एसिड्स में, सबका ये टूट जाएगा ग्लूकोज में। सिमिलरली फैट विल ब्रेक इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। और एक और चीज हम खाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए आरएनए, वो भी न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। तो अमेरिका के बच्चे ने चाहे बर्गर खाया हो, इंडिया के बच्चे ने चाहे पराठा खाया हो, लेकिन सबको मिलने वाला ग्लूकोज ही अब मिल गया बॉडी को। अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी करेगी एनाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक क्या होती है? प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स न्यू substances from simple ones created by कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म का उल्टा है। अब उसके पास जो ग्लूकोज आया उससे उसने आपको एनर्जी देनी है, उससे आपके पास जो फैट आया है उसको बायोजेनेसिस में यूज करना है, और आपका एनर्जी स्टोरेज बना रहा है, एनर्जी स्टोरेज। उसके पास जो अमाइनो एसिड्स आए हैं उससे आपकी बॉडी की नई सेल्स बनेगी, नए टिश्यू बनेंगे। लाइकवाइज, तो कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन, एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप। These two together are called metabolic। I hope I have made it very clear and very simple terms। So what have you Understood? written to write to burger? Polyglycerides, So what are they? these are the complex molecules which will further break down into sugar, glucose। सर मुझे एनाबॉलिक नहीं समझ आया। एनाबॉलिक क्या मतलब? जैसे तुम सपोज करो तुमने वो खाया, सुबह ब्रेड खाई, तो ब्रेड के अंदर वो है ग्लिसराइड्स, दे विल ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे ग्लूकोज बन जाएगी, उससे आपको एनर्जी देगी। तो वो एनर्जी देने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक। दूसरा, आपने सपोज अंडा खाया, अंडे के अंदर प्रोटीन था, उस प्रोटीन से आपकी नई सेल्स बनेंगी, आपके नए टिश्यूज बनेंगे, आपकी बॉडी रिपेयर होगी, आपके बालों को नए बाल बनेंगे, नई स्किन बनेगी उस प्रोटीन से। ओके, दैट एनाबॉलिज्म इज मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल which has been created by catabolic। क्लियर? यस चलो सर। दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था ये जो मैंने तुम्हें समझाया, याद रखना इसको। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मैंने किसको अभी मैंने नॉमिनेट नहीं किया ना, होल रीड। राइट, प्रभुगुण आपसे स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मैंने शुरू में बता दिया था प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, और ऑर्गेनेल जो होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती।
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और यूकैरियोटिक थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छे से ढंग से रखा रहता है, और जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन रहती है, कवरिंग रहती है। या प्लीज प्रभगन। On the basis of type of nucleus, cells are classified into two types: prokaryotics, the cells having nuclear material without बेटा एक nuclear मिनट, मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है कि ब्रैकेट में जो दिया है उसको तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो फालतू की चीज है, साइड करो। नहीं भैया, ब्रैकेट में दिया हुआ जरूर पढ़ना है। वो लैटिन वर्ड से बना है प्रो कैरियोटिक। प्रो का मतलब था प्राइम प्रिमिटिव, पुराने टाइप का, और कैरियोन का मतलब था न्यूक्लियस। बच्चे पढ़ इसको प्रभगुण। Pro means primitive, या karyon means nucleus. ये ग्रीक वर्ड से बना, ग्रीक से। हाँ, The cells having nuclear material without nuclear membrane are called prokaryotic cell. Example: bacteria and blue ब्लू green ग्रीन algae. एल्गी। अच्छा, इसका नाम मैं बताता हूँ, इसको बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये बहुत, जो काई नहीं होती अपनी, जो पॉन्ड के अंदर पड़ी रहती है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। कई जगह इसका नाम आता है, इसको बीजीए भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की लाइफ है। शुरू में जब लाइफ शुरू हुई थी, प्लांट लाइफ शुरू हुई थी, तो यहीं से शुरू हुई थी। साइनोबैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है। नाउ लेट अस सी यूकैरियोटिक। Sir, what is a nuclear membrane? अच्छा, अरे उस दिन सिखाया तो था मैंने, सिंगल फ्राई अंडा खा रहे हो, सिंगल फ्राई अंडा खाया आपने, इधर आया आपके सामने बन के, वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहेगा। अगर आप उसको प्रिक कर दोगे तो उसके सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो कौन Yes. होल्ड करके रखा हुआ था उसको? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होल्ड करके रखा हुआ था इसको। ओके? Sir, every cell organelle have a nuclear membrane. नहीं, एवरी सेल हैज गॉट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनल्स की जहां बात, ऑर्गेनल्स की जब बात सारी करें, सॉरी सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, हाँ देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज ये आई कैन अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन, वेयर द कंफ्यूजन। सी गाइस, इट इज लाइक दिस। चलो तो ये हो गया खत्म। ओके, नाउ ठीक, अब हम चलो साथ साथ ऑर्गेनल्स भी बता देता हूं, तो अभी ऑर्गेनल्स को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। व्हाट आर द ऑर्गेनल्स? लेट्स सी। देखो, अब ये मेरी सेल है, इस सेल के अंदर पहली मेम्ब्रेन तो ये है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब भी सबको समझ में आ गया, एक ट्रांसपेरेंट टाइप की झिल्ली, एक ट्रांसपेरेंट टाइप की ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ट्रांसपेरेंट कवरिंग। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, तो वो यूकैरियोटिक है, उसका ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस है इसका। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे सेल घूम रही है। हाँ जी, So सर आपका शायद से माइक डिस्कनेक्ट हो गया। आपके ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया। या अभी आवाज आ रही है वैसे? जी, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. यस सर, ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट। ईयरफोन देख लेता हूँ दोबारा। तो दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ओके, इसकी बैटरी खत्म हो गई, दूसरा वाला लगा लेते हैं, वेट करना एक मिनट। Yeah, okay, is it okay now? यस All right, guys, can you hear me now? सर, ईयरफोन्स अभी भी डिस्कनेक्ट है। हाँ, डिस्कनेक्ट है, कोई बात नहीं। अभी आवाज तो ओके आ रही है, टाइम लग जाएगा रिपेयर करने में,
ठीक है, अभी के लिए ऐसे काम चलाते हैं। ओके, सो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना प्रॉपर ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता, थोड़ा ऐसे करके घूमते रहते हैं, ऐसे करके इसको घूमते रहते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर मटेरियल होता है। लेकिन यूकैरियोटिक हैज अ ट्रू न्यूक्लियस और उसकी एक मेम्ब्रेन होती है। नाउ अर्नव सेड कि सर एक बात बताओ, हर एक ऑर्गेनेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है? भाई हर एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो होती है, बट उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी सारी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से, जो हमारा पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके चारों तरफ भाई डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल। लेकिन इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं कहते अर्नव, इसकी खुद की मेम्ब्रेन है। अरे न्यूक्लियर क्यों बोलेंगे इसको? ओके सर। ओके सर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। मैंने कल बताया था रेड ब्लड सेल का न्यूक्लियस बाद में बाहर फेंक दिया जाता है, एक्सेप्ट आरबीसी। ओके सर। ठीक है, चलो चलते हैं। एंड तो सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास एक मेम्ब्रेन होती है? सारे के पास होती है, एक दो होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं जिनके पास नहीं होता, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है लाइसोसोम्स के पास नहीं होता, सेंट्रियोल्स के पास नहीं होता, देखेंगे अभी आगे चल के। ठीक, या ओके प्रभुन आप कंटिन्यू करें, आई एम जस्ट शेयरिंग। ओके, या सो वी हैव अंडरस्टूड कि भाई क्या, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। या कंटिन्यू प्लीज। हाँ प्रभुवन, guys who can read? सर मैं सर मी ऑल राइट, जिया को पढ़ाते हैं, तस्मीर आपको चांस देंगे। जी आप पढ़े। characteristics size of cell prokaryotic typically 0.2 to 2.0 in diameter eukaryotic माइक्रोन था, typically कल बोला 10 to the power -6, वो माइक्रोन है वाला। typically 10 to 100 micron in diameter. Nucleus no nuclear membrane or nucleoli. Eukaryotic true nucleus consisting of nuclear membrane and nucleoli. Membrane enclosed organelles. Prokaryotic absent, eukaryotic present. Example isosomes, Golgi complex, endoplasmic reticulum, mitochondria, and chloroplast. ओके राइट, मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनिज्म। मेरा कॉलेज का फोटो था जो फ्रेम में था हार्ट से, तो आपने लगाया था ना मार्क वहाँ लगा मेन वॉल पे, जो अपनी जहाँ बाकी फोटो लगे हुए, एक मेरे ऑफिस में है। ओके गाइस, ओके अभी हो गया कनेक्ट के नहीं हुआ? No, sir. नॉट कनेक्टेड, अरे यार कर दे भैया कनेक्ट। हो चलो गया ठीक है, शायद। नहीं हुआ। ऑलराइट, देखते हैं, चलो मैं बाद में कर ले, अभी क्लास तो निकालनी किस तरह से। ओके दोस्तों सुनो अभी मेरे बात। ज्यादातर मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपैरेटस बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारे एक करके बताओ। चलो एक एक करके अब शुरू करते हैं, सेल ऑर्गेनेल की बात शुरू करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल से सबका स्पेसिफिक काम होता है। सबसे पहले आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक करके बता देता हूँ, बाद में फिर रीडिंग करेंगे। सो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की फोटो बनाई यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, डबल वो होती है। अरे तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, बहुत ही तुम वाकई खुश होगे सुन के, सर ऐसा हो सकता है क्या। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की दो वो होती है मेम्ब्रेन, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर फोल्ड हो जाती है। फोल्ड क्यों होती है? ताकि इसका मैक्सिमम
बहुत ज्यादा एरिया मिल जाए, इसको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाए कि जो भी हमारा जो जो ग्लूकोज से एनर्जी जो मिलती है उसका एक स्टेप तो यहां होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन फाइनल स्टेप इधर होता है, फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप यहां पे होता है, इसलिए एनर्जी क्रिएट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये खुद का बॉस है अपना, हाफ बॉस तो है ही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ओन डीएनए और ओन राइबोसोम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये बंदा अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो खुद का प्रोटीन बना सकता है, ये खुद को रिक्रिएट कर सकता है हमेशा के लिए। ओके, सो व्हाट इज द ब्यूटी, आई विल टेल यू व्हाट इज द ब्यूटी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम जो डीएनए आता है वो मदर से आता है, तो दैट मीन्स मेरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरी मदर से आया, उनकी मदर का उनकी मदर से आया, ठीक है। आप लोगों की मदर का आपका अपनी मदर से आया, उनका उनकी मदर से, उनका उनकी मदर से, उनका उनकी मदर से, मदर से मदर से मदर से मदर, फाइनली एक लेडी होगी, शी इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल ईव, एंड साइंटिस्ट हैव फाउंड शी लिव्ड इन अफ्रीका अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो। सारे ह्यूमन बींग्स के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए का जो पैटर्न है, कोडिंग है, वो एग्जैक्टली सेम होती है। क्यों? वो मदर से आती है, मदर की मदर की मदर की मदर की मदर। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स केम फ्रॉम दैट mitochondrial Eve, that woman who lived in Africa 2 lakh years ago. Okay, this is very interesting thing. Now, next, let me see what should I tell you. Okay, चलो इसको पढ़ ही लेते थोड़ा। जिया इसको पढ़ ले थोड़ा सा। Okay. मैं कर रहा हूँ इसको। Yes. Okay. Now, read mitochondria. Cell organelles. A cell performs different functions with the help of very small, highly specialized structures called organelles present in the cytoplasm. Some of these are as given below. Mitochondria. They are tiny rod-shaped cells. They are tiny rod-shaped structures which provide energy for all the activities of the cell by oxidizing food, thus often called the powerhouse of the cell. Guys, can you hear me now through this? Yes, sir. Earphone? Yes, sir. फिर पंगा हो गया। चलो। हाँ जिया। Yes, sir. जिया। Yes, sir. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके जिया थोड़ा दोबारा पढ़ दे उसको, मैंने लास्ट को थोड़ा सा मिस कर दिया। लास्ट Mitochondria. They are tiny rod-shaped structures which provide energy for all the activities of the cell by oxidizing food, thus often called the powerhouse of the cell. जिया। Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोग किसी की यार। Hello. ओ भाई लोगों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, sir. सर आपकी आवाज आ रही है। Okay, let me just check out. अब आ गई, चलो आ गई, चलो ठीक है। ओके राइट गुड दोस्तों, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, मैं पहले एक काम करता हूँ। आई वांट टू शो यू अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ ऑल द ऑर्गेनेल्स। पहले वो देख लेते हैं हम लोग। मुझे लगता नहीं इस बुक के अंदर दिया है इन्होंने, तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा दिखाऊंगा पहले, तो बेकार।
let us see a complete diagram of all the organelles, and I'll explain one by one. Yes. Okay. All right. I'm sharing. Please pay attention. सारे इकट्ठे देखते, फिर एक एक करके देखें, नहीं तो तुम्हें मजा नहीं आएगा. देखो दोस्तों, let me find a good diagram. Yeah, I think this looks good enough. Okay. Right. Yeah. युवराज, दिख रहा है ये डायग्राम? इसको और बड़ा करूं मैं. युवराज, can you see this diagram? युवराज जी, फिर नहीं आवाज आ रही है तुम लोगों की. हेलो सर. अर्नव, हाँ युवराज. ओके तस्मिया, यस आई कैन हियर यू. ओ युवराज, तुम बोल क्यों नहीं रहे भाई? नहीं क्लास में. वंश, दिख रहा है डायग्राम ये? Yes, sir. दिख. ओके गाइस, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सी, ये जो बीच में देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जिसके अंदर राइबोसोम्स है, और ये न्यूक्लियस जहां पे पूरा का पूरा क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए. राइट. नाउ ये बाकी के ऑर्गेनल सब कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं घूम रहे, उसके अंदर तैर नहीं रहे. न्यूक्लियस से देखो ये कनेक्टेड तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा ये फोल्डेड टाइप का होता है. इसके अंदर बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो बनता है उसका सिंथेसिस होता है, मतलब उसको कॉम्बिनेशन, पैकिंग, बुकिंग होती है उसकी. वहां से ये आइटम चले जाते हैं गोल्जी अपरेटस में. गोल्जी अपरेटस होता है सेल का पैकर एंड मूवर. जैसे अग्रवाल पैकर एंड मूवर है, इसी टाइप से अग्रवाल पैकर मूवर है. और यहीं से हमारी सेल का जो मेम्ब्रेन वो भी कनेक्टेड होता है. बहुत सारे सामान जो बाहर जाना होता है वो विल गो आउट, एंड फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स विल कम इन. नाउ फ्री फ्लोटिंग में कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया देख लो इधर. एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद एक सेंट्रियोल्स है. इसका मैं काम बताऊंगा क्या होता है. सेंट्रियोल्स का काम होता है जब हमारी सेल, दो फंक्शन होते हैं इसके. सेल को पहली बात तो पाइप्स होते हैं, ये सेल के अंदर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है सेंट्रियोल्स के थ्रू होता है. और जब सेल डिवीजन होता है तो इनका एक और स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बाद में बात करूंगा उसके बाद में. ओके. लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे. लाइसोसोम क्या होता है? डेड सेल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. ओके, लेट मी सी. थोड़े और चाहिए मेरे को, अभी और भी मिलने चाहिए. क्या ये देखो, तो सेल वॉल बात करेंगे, प्लांट की बात बाद में आएगी. पैराक्सियोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स. ठीक है. ओके, थोड़े से और देख लेते हैं. गोल्जी अपरेटस, मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट. ओके, right. Before I go ahead, I'll just explain to you that there are three organelles which are not found in animals. These are only found in plant cells. What are these? Let's have a look. Sir, are lysosomes also called suicidal bags? Suicide bag, yeah. They're called suicide bag because कोई भी डेंजरस चीज आती है हमारी बॉडी में, उसको एंगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, खा जाते हैं उसको, और उसको डाइल्यूट करके डाइजेस्टिव जूसेस से उनको नलिफाई कर देते हैं. कई बार सेल्स मर जाती हैं, सेल्स मरी हुई सेल्स को भी खा जाते हैं. और इनका एक तीसरा फंक्शन होता है, जब डिटेल में बताऊंगा, जब बात करेंगे. जब अगर हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों, हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो गया तो फैट काम करेगा, फैट को यूज करेगी बॉडी जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए. फैट भी खत्म हो गया तो हमारी बॉडी फिर प्रोटीन को ब्रेक करती है एनर्जी के लिए. वो भी एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं केटोनोसिस. एक कीटो डाइट होता है, बहुत लोग फॉलो करते हैं कीटो डाइट. कीटो डाइट में होता है आपकी बॉडी को बिल्कुल आप कार्बोहाइड्रेट देना बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी प्रोटीन को तोड़ती है, उसमें बहुत एनर्जी कम मिलती है. तो उसमें कुछ लोग वेट लूज करने के लिए वो यूज करते हैं, कीटो डाइट बोलते हैं उसको, केटोनोसिस. लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी खत्म हो गया, then what lysosomes do, they will eat the cell itself to create energy.
So they can eat a live cell as well as they can eat a dead cell also. Dead cell को तो खाएंगे normally, लेकिन कई बार live cell को भी खा जाते हैं. Okay, back to cell parts only in plants. देख लेते हैं यार कौन कौन से. पहली बात तो सेल वॉल जो होती है खाली प्लांट्स में मिलती है. दूसरा है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, अगली क्लास में मैं जब कराऊंगा तो बताऊंगा प्लास्टिड्स. एंड थर्ड इज, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 प्लास्ट होते हैं. एंड थर्ड इज वैक्यूल. वैक्यूल प्लांट्स में लार्ज होते हैं, एनिमल में स्मॉल होंगे और नो, या तो होंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, आज हमने बहुत कुछ नहीं कवर कर पाया. जितना मैं चाहता था हो जाता, उतना हुआ नहीं, लेकिन देखता हूँ. अभी मेरे को एक आई थिंक 2 days I need to complete this. Yeah. Sir, are Golgi's bodies fixed or they float? Golgi bodies. No, they don't float. They are fixed. They are chipka with mitochondria. Because mitochondria, mitochondria कह रहा हूँ, sorry, SER and RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकी रहती है. वो बनाते हैं मल, एक प्रोटीन बना रहा है, एक फैट बना, उसको देता है, चिपकाता है. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. गोल्गी एप्रोटस लाइसोसोम भी बनाता है. तो ये क्या करता है, वहां पे उनको कंबाइन करता है, फैट को, प्रोटीन को, अलग अलग अमीनो एसिड्स को, नए नए प्रोडक्ट बना के सप्लाई करता है उसको. पैकर एंड मूवर. ओके सर. ठीक है दोस्तों, आज टिडबिट्स में काफी कुछ कवर हुआ है, लेकिन एक फ्लो में जाना चाहिए था. कल हम फ्लो में, अगले 2 दिन मेरे को दे दो. सेल और बायोलॉजी से तुम्हें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. यू विल स्टार्ट लविंग बायोलॉजी आल्सो, एंड देयर आफ्टर वी विल डू मैथ्स. वी विल बैक टू मैथ्स. ओके, any doubts, just keep it with you. Tomorrow I'll solve because I'm now late for the next class. See you guys. Bye. Good night everyone. Bye, sir. Bye, Bye sir. guys. Bye, sir. Bye, sir. Ritvik Chandel, Shiv Chaudhary, Prabhgun. Bye bye. Bye, sir. Good night, sir. Bye bye Abhinav. Bye bye guys. Bye bye. Bye Arnav. Bye Shiv.